Assalamualaikum everybody. How are you all doing? I hope everybody is fine. I am Kiran Sheikh from Wow PK team and I'm working as community coordinator over there. Today we're going to talk about education. We talk about education a lot, but do we really talk about it or do we just talk about it as a conversation or something? Do we take it seriously? Do we know how it affects our whole life? Let's talk about it with Dr. Madhya, who can really talk about it, who can really tell you about education and the importance of education in women, which we totally neglect. Although we say a lot that we need women educated and we want them to be educated because they teach our children, but do we really talk about it? There are a lot of provoking questions I do have for you, but let's talk about it with Dr. Madhya. I'll introduce you to her. Basically, Dr. Madhiya is a professor. She is the professor of and director of pharmacy in Hamdard University. Let's welcome her on board and she'll tell her about herself as well. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मदिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं किरण वालेकुम आप? सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बगैर ठीक-ठाक। Okay. Madhya, first of all, tell about yourself. What do you do and what is your profession and why have you chosen education as your profession? जी, मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर मदीहा मलिक है और मैं डायरेक्टर फ़ार्मेसी के तौर पे काम कर रही हूँ हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। एंड बिसाइड एजुकेशनिस्ट आई एम ऑल्सो अ रिसर्चर और रिसर्च इज़ एक्चुअली माय पैशन। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्चर्स की अगर हम रेशियो देखें मेन एंड विमेन के अंदर, तो फीमेल रिसर्चर्स काफ़ी पाकिस्तान के अंदर कम है। सो आई जस्ट वांटेड टू परसू माय करियर एज अ रिसर्चर, एज एजुकेशनिस्ट। और फिर एक हमारे मुल्क के अंदर बड़ा ये कॉमन है कि हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, और अगर उसका एडमिशन डॉक्टरी में नहीं होता तो दे थिंक कि पता नहीं दुनिया खत्म हो गई है। बट आई वाज द वन हु चोज फार्मेसी बाय चॉइस। और Okay. आई रिमेम्बर कि मेरा अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया एंड आई लेफ्ट इट एंड I joined pharmacy, and now I think Okay. I'm proud of it, and it was worth doing that. Perfect. Okay. Basically, I am a graduate from Hamdard University as well, but I am a business graduate. Okay. Okay. Okay, but yes, let's talk about education. Tell us about the importance of education, especially in women, because you work with them. Actually, you work with both the genders. But what do you think women, basically, what is the role of women in education and how do they bring the impact of education in our society or in our homes even? Actually, you see, the role of women is quite immense when we talk about the economic development of any country. But Okay. I have seen over the years, like when we were actually studying, when we were doing our graduation at that time, or pursuing our masters. Although the number of female students in the professions is now okay, but the problem is that the job opportunities which they are getting, one of the reason is that they might not be enough for them, or most of the women, they do not get that appropriate working environment and facilities, due to which they are not coming into profession, joining different fields, and helping the economy grow. So I think that, like, if I talk about particularly about pharmacy, now we have like 70% of the students in pharmacy schools in Pakistan are female, and even the faculty teaching over there are female. But still, if Hmm. you compare the employment ratio, male to female employment ratio of Pakistan, it's quite low in terms of females working in the fields. So I Hmm. think that we always talk about one perspective of education, that to grasp. I'm just talking about the higher the higher education sector, in which the girls have the access to go to universities. I'm not talking about primary and secondary level. I'll discuss it later in the interview. uh, Access is another thing. Mm-hmm. I totally agree that the opportunities or the access to different education, to the different education facility is a problem in Pakistan, which is one of the neglected link, you can say, especially in the rural areas or in different provinces.
But still we need to talk about this, and we need to highlight this issue also, that even if the females who are in greater numbers in different profession and who are graduating, we need to produce appropriate opportunities and facilities for them to join that workforce. Otherwise, the increasing the number alone cannot help us Hmm. uh, in growing our economy of True. Pakistan. Okay, I have a question, and this is a question that I have been asking from a lot of educators. Do we really get the education for the sake of degree, or is the education bringing any change in our women or something? Because when we see around you, most of the people do it for the degree, or then they have their mind that they want this sort of job. They'll get this degree, and that this is the job they're going to. Do we are we making any difference with this education or not, or it's just the degree based education? Actually, if to be very honest, if I would be honest with you, so it is Okay. the way you are saying that, yes, it is for the sake of degree only. But again, it depends upon, I think, institutions where you are passing out or you are graduating, because the environment is quite, it has quite a significant role in imparting that thought process, or cultivating Mhm. that thought process in their graduates, that how they perceive their degrees, and how they are tuned enough to contribute towards the society or towards the betterment of Pakistan. But actually, True. the problem is this, that where I see that I cannot blame the students alone for this. I think that our teachers, our faculties, they need to be groomed and they need to be trained in a True. way that they should be developing that particular motivation, or the urge to work, and the creativity and all that, because you burden the students so much with just getting good grades, or that GPA thing. True. And that's where we are doing that mistake, and then they cannot get out of that frame, and they think that getting good grade is the only requirement they need to acquire to get a good job, or to pursue their better careers. But I think, again, exposure is one of the thing which needs to be done. Like, I have also studied abroad, and I've been always comparing that what's the difference at our national level and the international level. So one thing which I see missing over here and there is, like, the trained faculty members, because they are the one who tell you how to acquire the skills. And one thing I think is that it's more important to produce professional graduates, True. and this is the biggest thing which is missing in the education sector of Pakistan. We do not groom them professionally. They actually do not know how to present themselves. And that is one thing which is being done at the international level. They basically Yes. use their graduates and make them professionals. So when they are in the market, they behave as professionals. But this is very unfortunate that the graduates in Pakistan, they struggle hard to learn their professionalism when they are out in the market, and I think it's True. quite like that. True. Very true. Okay. What is the state of women participation in our education, especially in Pakistan? And what do you think? Is it satisfactory at the moment, or do we really need to work on it? Okay, if I say that, I would not be making any discouraging statement at that time. But what I have seen over the years, a good number of female workforce is entering into the education system of Pakistan, which is quite Okay. encouraging. And I see a lot of youngsters coming up in the faculty, and they are also taking some administrative roles. Like, if you see, I am also the youngest professor in Pakistan. Like, I got that professorship, and now I'm also Mhm. heading a department for the last 4 years. And I see a lot of females who are heading, who working as deans, or who are working as directors and all. But still, obviously, there is more room to work on. I think that the basic problem lies at the primary and the secondary level, where we Mhm. need to push things smartly to get good number of female students being enrolled in the um, system. Because if you see in the urban areas, it is not a problem as such. It's not, although it's a problem, but as such, still we have a lot of access and facilities for the education to get our children in the education system. But especially if we talk about the rural area, I think the problem lies over there. And Okay. then the faculty which is being teaching over there, I have a huge question mark on the capacity and on the competency of them, due to which we see disparities
when we talk about this gender equity, especially focusing in the education system of Pakistan. But I think the situation is improving now. It still needs more working, but it's better if we compare it previously. Okay. There's a question, Madia. It's not related to higher education, but it's still related to the education. I have seen this, especially in primary sectors or the primary education system. What we consider is the writing system. The writing, the lam shouldn't be this way, the lam shouldn't be that way. That is one huge question, and that is one big lie, you can say. I do with the teachers that why do we need to have all these things when we know that this is not the, and this is not everything. They need to learn how to write it, but they do not need to learn it very beautifully. They're not doing any calligraphy or anything. But why do we have to cater that instead of catering other things as well, like teaching them new things, like exposures to them, like giving them experiments like we do in foreign countries? But why don't we do over here in primary section, especially because that is the base of your education. You're giving the child a base for everything he's going to do for the rest of his life, actually. So why are we still stuck in this? A should be like this or B should be like this? Why? Okay, let me allow to share a statistics of our primary and secondary education system in Sure. Pakistan. According to a report in July 2018, nearly 22.5 million children are out of school in Pakistan, and Hmm. girls are particularly the most effective one. And True. 32% जो बच्चियां हैं वो बेसिकली प्राइमरी, हम जहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो वहाँ पे अफेक्टेड थी। और अगर हम सिक्स्थ क्लास की बात करें तो 59% जो लड़कियां हैं वो जो है गर्ल्स स्कूल तक नहीं पहुंच पाती। और अगर हम नाइन्थ क्लास की बात करें तो तो ये 13% सिर्फ लड़कियां हैं जो कि नाइन्थ क्लास तक पहुंच पाती हैं, या 13% Hmm. लड़कियां, रूरल की बात कर रही हूँ, जो True. वहां तक उसमें पहुंच पाती हैं। और फिर अगर हम प्रोविंस वाइज बात करें तो बलूचिस्तान का सबसे लोएस्ट हमारा इस वक्त एजुकेशन रेशियो है इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स। और 81% वो खवातीन हैं बलूचिस्तान में जिनको आज तक प्राइमरी एजुकेशन की के एक्सेस मिली ही नहीं है। बिल्कुल। और 75% वो हैं जिन्होंने कभी स्कूल ही नहीं अटेंड किया। और 40% एज कम्पेयर टू 40% ऑफ मैन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब और ऑब्वियसली सिंध के अंदर भी बहुत ज्यादा लो एजुकेशन हमारा रेट है True. इन टर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। Very true. यहाँ का रेट जो है वो काफी अच्छा है एजुकेशन का, बट स्टिल वहाँ पे Hmm. और तरह की जेंडर डिस्पैरिटीज है वहाँ। अब ठीक है। आपकी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों ऐसा है कि हम ये, अब पहले तो आप ये एक ड्रास्टिक किस्म का अपना एजुकेशन सेक्टर के अंदर Hmm. आप स्टैटिस्टिक्स देख लें कि जो कि हमारी एक्सेस है हमारी फीमेल True. फीमेल एजुकेशन तक। अब वो जो आ जाती हैं, अब अगला प्रॉब्लम ये आता है, अच्छा आप कुछ ना करें, आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन कर लें। Hmm. आप एक प्राइवेट स्कूल का कंपैरिजन कीजिए और एक आप पब्लिक स्कूल का कंपैरिजन कीजिए। प्राइवेट स्कूल अगर आप देखें जैसा भी होगा, मैं बहुत बड़े स्कूल्स का नाम नहीं ले रही हूँ, Hmm. लेकिन चलें अगर हम एक एवरेज प्राइवेट स्कूल, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चों को क्रिएटिविटी सिखा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों True. को जो डिफरेंट एक्टिविटीज है जैसे बिल्कुल। टाइम सिखा रहे हैं, बच्चों को पेंटिंग सिखा रहे हैं, म्यूजिक थोड़ा सिखा रहे हैं, इन्वॉल्व मतलब कर देते हैं उनको। यस। एग्जैक्टली इवॉल्व कर रहे हैं उनको अपनी एक क्रिएटिविटी और वो। लेकिन अगर आप चले जाएं अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो वहां आपको वही रट्टा सिस्टम, वही वेरी ट्रू। एक पैटर्न, वही सब चीजें आपको नजर आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने इवॉल्व क्यों करा और गवर्नमेंट सेक्टर क्यों इवॉल्व नहीं कर सका? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल ही नहीं चल रहा। ट्रू। आप और मैं उन्हीं प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए हैं, एंड वी हैड ऑल दो स्किल्स ना, हमने एक्वायर की हैं। एग्जैक्टली। हम वेरी ये तो ट्रू। नहीं कह सकते कि सिस्टम है नहीं या सिस्टम बिल्कुल। आ नहीं सकता या लोग ऐसे हैं ही नहीं जो इतने ट्रू। पॉलिश होकर निकल रहे हैं बच्चे। तो अगर वेरी आप ट्रू। इसको कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो आपकी टीचिंग है, अच्छा अब मुझे लग रहा होगा कि अब मेरे इस इंटरव्यू के बाद बहुत से टीचर्स माइट भी ऑफेंड हो जाए, बट देखिए हमें रूट कॉजेस को भी ट्रीट ट्रू। करने की वेरी ट्रू। जरूरत है। वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट अलोन कि जी गवर्नमेंट ये नहीं कर एग्जैक्टली। रही। गवर्नमेंट ने आपको रिसोर्सेज देना है, एक फ्रेम देना है, आपको पॉलिसी दे देनी है।
कभी मैंने नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने या किसी भी इदारे ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कि वो आपको एक फ्रेमवर्क दे देती है, बट आपके पास वो एक्सरसाइज करने की अपनी पावर्स, फ्लेक्सिबिलिटी है, अपनी इनोवेशंस, अपनी क्रिएटिविटी उसमें लेके आने की। हमेशा हर पॉलिसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेरी इट्स ट्रू। यू हैव टू मेक दैट चेंज। अब अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो वहाँ की मैंने जो टीचर्स देखे हैं, हम अक्सर बात करते हैं, तो दे डू नॉट वांट टू लीव देयर कंफर्ट जोन। अब मैं उनकी भी बिहाफ पे ये प्रॉब्लम समझती हूँ कि अगेन अगर आप सैलरीज की कंपैरिजन करें, तो एक बहुत ह्यूज डिस्पैरिटी है जो हम देखते हैं हम्म। उनकी सैलरीज के अंदर, और फिर वो एक फैसिलिटी वाइज, और ऑब्वियसली दे आर नॉट ट्रेन्ड, और हर किसी को वो एक कंफर्ट जोन चाहिए कि बस आप सुबह जाओ, हाजिरी लगाओ, पढ़ाओ, आ जाओ। तो वैसे जब ही। तक आप उस कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे वो स्किल्स, वो कैसे चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अभी बहुत अच्छी एचईसी के डिफरेंट प्रोग्राम्स है जिसमें वो कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स की करता है, बट अगेन ट्रू। आई हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन दोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हम एक किसी भी मुल्क का कोई भी प्रोग्राम उठाते हैं और उसको एज इट इज अपने कंट्री के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट कराते हैं, ये मेरी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हम्म। आपने अपनी नीड्स, अपने लोगों की कैपेसिटी, अपने लोगों के लेवल के मुताबिक वो तैयार करना है। आप वो कस्टमाइज नहीं ट्रेनिंग किया करा इसको। दें, लेकिन वो एग्जैक्टली अब आप वो ट्रेन कर दें, लेकिन वो जब उसको समझ ही नहीं सक रहे, वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कराएंगे, तो उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है ना। तो हम्म। मुझे एक तो ये बहुत बड़ा इशू लगता है कि वो रट्टा सिस्टम से हम नहीं निकल पा रहे, या वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस दो स्किल्स और वो चीजें। हालांकि हमारा प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है ट्रू। कि उनके लिए एक वहां पे मनी मेक्स द मेयर गो वाली बात भी है कि उनको वो एक चाहिए भी है, बट स्टिल हमारा पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं। हमने पहले सुनते थे कि पब्लिक सेक्टर में भी जी पीपल यूज टू बी प्राउड कि जी हम सीबी कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, या इधर से पढ़ के आ रहे हैं, बट अब एक हम्म। ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल। लेकिन अब अगर लेकिन मैं अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, मैं आपको बहुत प्राउडली करना चाहूंगी कोट रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। उन्होंने वाशिंगटन अकॉर्ड का पूरा सिस्टम, डब्ल्यूएचओ का पूरा सिस्टम अडॉप्ट किया। उनके सारे ग्रेजुएट्स के जो 50% रेशियो जो बाहर जाके फर्स्ट टाइम में टेस्ट क्लियर करते हैं, इवन इफ आई टॉक अबाउट हमदर्द, तो हमारे फार्मेसी के ग्रेजुएट्स करते हैं। बट अगेन इट इट देयर इज अ वेरिएशन। और जहां हम्म। तक फीमेल्स की बात है, आई डोंट वांट टू बी जेंडर बायस, बट स्टिल मैंने जो चीज देखी है कि फीमेल्स आर मोर कमिटेड, दे आर मोर फोकस्ड। ट्रू। अगर आप उनको कोई असाइनमेंट या चीज देते हैं, तो उनका काम करने का तरीका एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप फीमेल्स को रिप्लेस, मेल्स को मतलब उनसे रिप्लेस कर दें, बट स्टिल एक हमारी वो डेडिकेशन और मोटिवेशन की मुझे कमी लगती है, जिसकी वजह से शायद हम उस अपने कंफर्ट जोन से शायद लोग बाहर नहीं आना चाहते। बिल्कुल। बेसिकली मुझे ये लगता है कि हमने एजुकेशन को एज अ होल नेशन बिल्कुल मनी मेकिंग बना दिया है सिर्फ। इट्स अबाउट मनी, टीचर्स जाएंगी पैसे लेकर आएंगी और स्कूल्स ने भी सिर्फ मनी मेकिंग करनी है। सो हमारा ये वाला प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से आई थिंक लोग डोंट डोंट टेक इट सीरियसली कि हमने कैसे एवेलुएट करना। इवन मैंने, आप तो टीचर्स की बात करो, मैंने पेरेंट्स को भी देखा है जो ये कहते हैं कि स्कूल ने हमें होमवर्क नहीं दिया, रट्टा नहीं करा रहे, फलाना नहीं करा, तो ये अच्छा स्कूल नहीं है। आई सीन पीएचडी पेरेंट्स जो ये ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि कैसी बात करें कि स्कूल का मतलब रट्टा नहीं है, इट्स बेसिकली ग्रूमिंग योर किड। इट्स बेसिकली एक नया बंदा इवॉल्व करके आप सोसाइटी में छोड़े, तो इट्स नॉट अबाउट कि उसने कितना चैप्टर रट्टा मार के वो पेपर में देके कितने मार्क्स लेके। पर आई हैव सीन दिस पेरेंट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेसिकली हमारी जो कैरियर काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटीज में, जो पहले नहीं होती थी, अब रिसेंटली बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है कैरियर काउंसलिंग यूनिवर्सिटीज में, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज डोंट गिव यू डिग्रीज अंटिल अनलेस आप इंटर्नशिप नहीं करके आते। सो आप उसी वक्त से कैरियर काउंसलिंग की साइट पर जा चुके होते हो, विच इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि बच्चों को पहले ही आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल वर्ल्ड किस किस्म की और बुकिश वर्ल्ड किस किस्म की है। डू यू थिंक ये हमारी किसी तरह से हेल्प करी है, या डिजिटलाइजेशन की वजह से इस पे कोई इफेक्ट आया है, या टीचर्स के पास अभी भी बच्चे जाते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट डू यू सजेस्ट अस वी शुड डू? Acha, Kiran, this is a very good question because I have been really working very, hard on this to get or to develop a system of this career counseling thing at my workplace. अच्छा, अब मैंने ओवर द ईयर जो चीज़ देखी है कि बिल्कुल डिजिटलाइजेशन हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आई थिंक ह्यूमन इंटरेक्शन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल थिंग। ट्रू। जो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट से अपना वो एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस एक वो उसको कन्विंस कर सकूंगी, ये नहीं हो। अब बाकी डिजिटल चीज़ वो नहीं कर सकेगी। ऑब्वियसली डिजिटल के अंदर आपको स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज, आपको बहुत सी चीज़ें पता तो चल रही हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है?
प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब मैंने एक टूल यूज़ करा, मुझे पता चल गया फलां जो है स्कॉलरशिप है, मैंने अप्लाई भी कर दिया, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई, मैं बाहर भी चला गया, मैं पढ़ के भी वापस आ गई, मुझे अब जॉब ही नहीं मिल रही। अब वो जॉब क्यों नहीं मिल रही? आपको Hmm. मालूम है कि एक सर्वे के मुताबिक लास्ट दिसंबर 2020 तक 3000 पीएचडीज जो हैं वो जॉबलेस हैं इन पाकिस्तान। क्या रीजन है? क्यों Hmm. जॉब? अगर देखें ना, डिजिटल टूल्स थी, डिजिटलाइजेशन इतना हेल्प किया, True. उन सब ने ग्रो भी किया, अपना Hmm. करियर भी उन्होंने सही चूजा, तो क्यों उनको आके वापस नौकरियां नहीं मिल रही? ये बड़ा क्वेश्चन है जिसको Yeah, हमें देखने की जरूरत very true. है। अब वो True. इस Very true. मिल रही, मैं खुद एम्प्लॉयर हूँ और मैं बैठती हूँ, मैं बोर्ड में और मैं इंटरव्यूज करती हूँ। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि जी ठीक है, आप पढ़ के आ गए बाहर से, आप हमें ये बताएं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लाइक आप हमारे लिए कोई एमफिल पीएचडी प्रोग्राम या कुछ समथिंग डिफरेंट आप यहाँ पे Hmm. इस्टेब्लिश। तो वो हमें बता देते हैं कि जी फलां, अगर आप हमें, जी जी मैं आपके लिए ना ये वाला प्रोग्राम लॉन्च कर सकता हूँ। तो अब आप उनसे पूछते हैं कि ओके वाई आपने अब आपको हमें रिसोर्सेज बताएं, कितना हमें चाहिए, इसका बजट बता दें। तो हम बता देते हैं जी हमें आप मुझे Hmm. 2 करोड़ की लैब बना दें तो मैं ये कर दूंगा। अब यूनिवर्सिटीज के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सिर्फ एक इतना फंड नहीं था। एमफिल पीएचडी के लिए जिसमें सिर्फ 20 बंदों ने आना है, रेवेन्यू भी नहीं निकलना, और 2 करोड़ वो इस पे इन्वेस्ट करके लगा के बैठ जाए। Very true. और Very आप true. उनसे पूछते हैं जी अब आप कुछ और कर सकते हैं, तो कहेंगे नहीं जी हम तो स्पेशलाइज इसी में करके आए हैं, हमें सिर्फ यही आता है। True. अब जो वहां पे एम्प्लॉयर बैठा है वो उसको अब बिल्कुल स्ट्रेट अवे उसको कहेगा जी वो दरवाजा है तो आप जाएं। तो वो उनके Hmm. मुकाबले में कि हम ऐसे बंदे को क्यों ना रखें जो हमारी 4 क्लासें भी पढ़ा दे, हमारा एमफिल प्रोग्राम भी देख ले, हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज करते। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जब ये लोग अपने ओन पे जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर सप्लाई और डिमांड का जो रेशियो चल रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, क्या मतलब हम करके तो आ गए हैं कि क्या यहाँ पे सप्लाई तो आ रही है, डिमांड भी है कि नहीं है? वी आर बिल्कुल प्रोड्यूसिंग so many such graduates in so many disciplines जो कि अभी जॉब मार्केट ही जिनकी क्रिएट नहीं हुई है। ऐसा ही है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर मैं अब देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में कोई बाहर से पीएचडी करके भी आ जाएगा, पाकिस्तान में तो इक्विपमेंट ही नहीं है। हर बंदे के पास 2 करोड़ रुपया तो नहीं है कि वो हम्म। इक्विपमेंट लैब उसको डेवलप करके देगा। ऐसा ही है। तो अब अगर ये डिजिटलाइजेशन हम्म। यही अगर वो ह्यूमन इंटरेक्शन करेगा, विच आई बिलीव, तो वहां पे उसको गाइड किया जाएगा कि ये आपका एरिया है, ये ट्रेंड है, अब दूसरी की बात में एक मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और सेकेंडली मुझे एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ, पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगर हम सबसे ज़्यादा जो है ये वाली टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करा दें अपने ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, जो कि हम असेस कर सकें हर बच्चा यूनिक है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी, उसकी अपनी स्किल है, और वो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए करियर उसके लिए उसको वो मतलब उसके लिए उसको वो तैयार करती है। तो अब ये चीजें हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं हमेशा आईक्यू और ईक्यू की बात करती हूँ। आईक्यू एक गॉड गिफ्टेड चीज है, आप हम्म। उसको एक सर्टेन उससे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपकी इंटेलेक्चुअल चीज है। लेकिन एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है। ट्रू। अब इमोशनल इंटेलिजेंस जब तक आप अगर आपका आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आपका ईक्यू बहुत अच्छा है, तो आप बहुत आराम से अपने करियर में ग्रो भी कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ईक्यू, इन कोफिशिएंट्स पे काम नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी हम एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, ईक्यू या आईक्यू, इट्स एन ऐप आल्सो, और हम वो स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर पहली दफा मेंटल हेल्थ पॉलिसी बन रही है। ओके। हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, और इस पे उन्होंने पूरे एक्सपर्ट ग्रुप डेवलप किया है जिसके अंदर, जिसका पार्ट मैं भी हूँ। ग्लोबल मेंटल हेल्थ वाले इसको लीड कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और डिफरेंट उसमें एक्सपर्ट्स आए हैं, वर्किंग ऑन इट। तो विच इज़ अ वेरी गुड विच इज़ अ वे फॉरवर्ड। हमने अभी एक प्रोग्राम हम डेवलप किया, हमने एक ये हम फंडिंग के लिए हमने अप्लाई भी किया। तो आई थिंक कि डिजिटलाइजेशन अलोन कैन नॉट हेल्प, इट ट्रू। इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द फिजिकल इंटरेक्शन या वो जो एक्सपीरियंस है, या एक वो सारी। वरना आप देखें ना, इस्लाम में भी देखें कि अगर सिर्फ कुरान इनफ होता तो हम्म। पाक को आने की जरूरत नहीं थी, वेरी जिसने ट्रू। वो एक के तौर पर सो करना था। वेरी ट्रू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन। बेसिकली आपको क्या लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है या हमारे कंट्री में वुमेन जो काम
कर रही हैं उनके स्पेशली जो काम कर रही हैं रिकग्निशन मिलती है क्या टीचर्स को उनकी वो ड्यू रिकग्निशन मिलती है या एनीबडी रिसर्चर्स और एनीबडी हु आर वर्किंग इन एजुकेशन बेसिकली डू दे गेट देयर रिकग्निशन एज दे आर सपोज टू गेट इट और या फिर वो सिर्फ अपना काम कर रही थी बिकॉज दे लव टू डू इट लेकिन उफ, उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल दिस रही इज थी अ ड्यू वेरी हार्ड रिकग्निशन बर्निंग क्वेश्चन जो आपने मेरे से एज एन एजुकेशनिस्ट पूछा है। शायद आज आप मुझे कुछ ऐसा पहले पूछते तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट होता, लेकिन अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट है। um, मुझे लगता है देयर आर ह्यूज गैप्स। ओके ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ओके पाकिस्तान के अंदर मैं सिर्फ इसमें फीमेल्स नहीं कहूंगी, मैं मेल्स भी कहूंगी। मैं एक उस्ताद की पूरी बात करूंगी, ओके मेल्स एंड फीमेल्स दोनों हैं। परफेक्ट एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने ओवर द ईयर एक डिटोरिएशन देखी है हमारी सोसाइटी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो स्टूडेंट का माइंडसेट भी ये होता है और पेरेंट्स का माइंडसेट भी ये होता है कि वी आर पेइंग, सो यू नो ये हमारे जो हैं गुलाम हैं, यू नो वी आर पेइंग देम, और आपके वेरी हमारे ट्रू पैसों से, सो वी हैव यू नो वी दे आर बाउंड टू डू व्हाट वी वांट देम टू डू। एक ये मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी। फिर आप अगर किसी बच्चे को फेल कर दे तो आपके लिए एक एक अजाब है कि जी ये। अच्छा, मैं समहाउ इस चीज से बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट भी हूँ और मैं इस चीज को समझती हूँ। मैं ये बात हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज द स्टूडेंट्स हु आर विक्टिम्स, इन सो वेरी मेनी ट्रू केसेस टीचर्स आर द विक्टिम्स। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हो गया है विदाउट एनी कोई इन्वेस्टिगेशन करे, कुछ भी करे, पीएम पोर्टल पे दे दिया उसने, एचईसी दे दिया, मीडिया पे आ गया और एक थ्रैशिंग शुरू हो जाती है सारे टीचर्स की और एक एजुकेशन सिस्टम की, विदाउट नोइंग के पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज है, और आप एक कटहरे में आपको ला के खड़ा कर दिया जाता है सारे उस को। मुझे समहाउ ये लगता है कि टीचर्स के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। देयर आर बिल्कुल सो मेनी केसेस जहाँ पे टीचर्स को हरास किया जा रहा होता है बाय द वेरी ट्रू स्टूडेंट और ट्रू इवन बाय द पेरेंट्स। और मैंने ये बिल्कुल चीज फेस भी की हैं, हम ये चीजें देखते भी हैं। और यू बहुत दफा उन टीचर्स दे डोंट वांट टू डू सर्टेन थिंग्स बिकॉज दे आर राइट, बट दे आर फोर्स टू डू इट। और आपको इतना उस पॉइंट पे ले जाते हैं लोग कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको एकदम से लगने जाता है यार मैं क्यों इस प्रोफेशन के क्यों मैं इस प्रोफेशन का हिस्सा हूँ। तो वेरी ट्रू ये सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा, जैसे अब मुझे आज भी याद है हम अपने उस्तादों की अभी कॉल्स भी आती है तो एकदम से हमारी हार्ट बीट जो होती है ना वो थोड़ी देर के लिए इट्स अपसेट, ओ सर की कॉल है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट सी दीज थिंग्स इन दिस यूथ। और इसकी एक वेरी ट्रू बहुत बड़ी reason ये है कि बहुत गलत बैकिंग मिलती है इन बच्चों को इनके पेरेंट्स से, वो जो अभी हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल और ट्रू अगर को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को अगर हम पे ट्रस्ट करके वहां भेज रहे हैं तो आप हमें वो अथॉरिटी भी दें कि हम उसको उस तरह से ग्रूम करें। अगर आप हमें अकाउंटेबल समझते हैं किसी भी उसकी फेलियर के लिए, तो फिर हमारे पास वो अकाउंटेबिलिटी, वो राइट्स भी होने चाहिए कि हम उसको उस तरीके से पहले ग्रूम कर सकें। अगर ट्रू आप हमें हर स्टेप के ऊपर बाउंड कर देंगे, हमें रोक देंगे, तो डेफिनेटली हम उसको अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि रिकग्निशन की जहाँ तक बात है, बिल्कुल रिकग्निशन मिलती है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि 100% सबको रिकग्निशन मिलती है। बहुत से केसेस में नहीं भी मिलती, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज भी हैं। लेकिन कुछ फोरम्स हैं भी जहाँ पे रिकग्निशन मिल भी जाती है, सबको नहीं भी मिलती है, और कुछ बहुत से लोग आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं तो पता नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपके जो बॉसेस हैं उन पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो आपको अप्रिशिएट कर दें तो अब देखिए डिफरेंट तरह की रिकग्निशन है, इंसेंटिव्स हैं इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में, बिल्कुल जो ट्रू कि पाकिस्तान के अंदर आई थिंक एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क है। आप लोगों को अगर आप देखें 80% लोगों को ना फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स, फाइनेंशियल या मॉनेटरी वैल्यू चाहिए उस मोटिवेशन को करने के लिए। उन्हें घर चलाना है, उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन देखनी है, सब देखना है। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई इस तरह से बाय लॉज एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे टीचर्स के लिए कोई स्पेसिफिकली मॉनेटरी वैल्यू से अभी तक लिंक नहीं किया गया। ऑल दो केपीआईज बनाए जाते हैं, लोगों को बड़ा उस पे वो भी करवाया जाता है कि आपने करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो केपीआईज मीट होते हैं तो जब मॉनेटरी या फाइनेंशियल की बात आती है तो दे डोंट गेट दोज रिवॉर्ड्स। तो ये रिकग्निशन तो ट्रू पाकिस्तान में नहीं है, चाहे पब्लिक सेक्टर की आप बात कर लें, प्राइवेट की बात कर लें। आई थिंक ओनली 5 or 10% ऑफ द यूनिवर्सिटीज और इवन द स्कूल्स और कॉलेजेस वुड बी द गुड वंस जो ये काम कर रहे होंगे। अब अगर आप वेरी ट्रू दूसरी की बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है एचईसी ने बहुत अच्छे अवार्ड्स किए हैं, एक अच्छे एक हेल्दी कंपटीशन बनता है, लेकिन मैं नेशनल लेवल पे और इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स नहीं देखती जहाँ पे लोगों को, अब देखें आप इतने ज्यादा लोगों को आप ऑब्वियसली
एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां लोगों की को किया जाए। और मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा अच्छी अप्रिसिएशन होती है, जैसे वाओ ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू किया है, लाइक आई मस्ट अप्रिशिएट देम। मैं खुद लास्ट ईयर इसकी एजुकेशन कैटेगरी की विनर थी, और ट्रू। सो मेनी पीपल और वो। लेकिन द थिंग इज कि इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स भी होने चाहिए। अब देखिए, जैसे बलोचिस्तान है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, शायद हम अभी बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में पंजाब वाले काम कर रहे हैं, या सिंध वाले कंपैरेटिवली करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हु ट्रूली डिजर्व दैट अप्रिसिएशन, जो उस उन उन एरियाज, उन सिस्टम्स के अंदर काम करें, जो शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते वहां जाके इतना वेरी इस ट्रू। तरह काम। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उनको वो ड्यू रिकग्निशन नहीं दी जाती, या नहीं अनफॉर्चुनेटली मिल रही है। तो मुझे लगता है इस तरह के मजीद प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। बिल्कुल रिकग्निशन है, बट आई थिंक इट्स नॉट इनफ, और होनी Okay. चाहिए। Okay. What do you think जो हम वाओ पीके was because he was the winner as well, जो लास्ट ईयर वाओ वाओ अवार्ड्स थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसके साथ एज अ पार्टिसिपेंट इन एज ए नॉमिनेशन नॉमिनेटेड पर्सन, और फिर आप एक विनर भी थी? व्हाट वाज योर टोटल एक्सपीरियंस ऑफ दैट? और लोगों को बताएं, डू दे नीड टू नॉमिनेट इट, बिकॉज हाउ डज इट फील जब आप नॉमिनेट होते हो? बिकॉज टेकिंग, आई थिंक टेकिंग पार्ट इज इम्पोर्टेंट इंस्टेड कि आप सिर्फ ये सोचो कि आई हैव टू विन। व्हाट वाज द फीलिंग, क्योंकि विनिंग तो आपकी बहुत एंड पे हुई थी, आपने अपने आप को नॉमिनेट तो बहुत पहले किया था, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस थ्रू आउट? अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो दैट वाज अ टोटली वे डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे तो अवार्ड्स जीते हैं, बट ये नेशनल पे मैंने कभी किसी अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। पता नहीं, मुझे या तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट वर्थ अप्लाइंग, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैंने इसको अप्लाई किया, और नॉमिनेशन भी हो गई और फिर जब जीता भी। अच्छा, एक पाकिस्तान के अंदर जो मुझे लगता है कि इतना बड़ा कल्चर है कि अब अगर कोई जीत गया है, लेट्स सपोज, तो लोगों को लगता है कि शायद ना जी ये बाइसनेस है, ये इनको जिता दिया। ये हमने भी सुना, मैं आई नो कि आप लोगों ने भी सुना होगा। और वेरी मजे की ट्रू। बात, मैं आप लोगों से कभी मिली ही नहीं थी, ना मैं आपको जानती थी। ऐसा और ही है। मेरी जो एप्लीकेशन थी, मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो इवन मैंने खुद भरी भी नहीं थी। वो मेरी एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था मेरे पे, ओके। और मुझे पता भी नहीं था। और अच्छी चीज इसमें, अच्छा, जब व्हेन शी अप्लाइड और आई गॉट नॉमिनेटेड, सो दे केम टू मी और दे सेड कि मैम, हमने आपकी एप्लीकेशन भर दी थी और आपकी नॉमिनेशन हो गई है, वो शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, वो नॉमिनेट हो गए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कहा, "ओह, अच्छा।" तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा, वी जस्ट वांटेड टू गिव यू सरप्राइज, और लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कहा, ओह अच्छा, चलो अब कुछ हम करते हैं। तो वो जब वोटिंग शुरू हुई, वहां पे वोट्स हुए, और वो पूरा एक प्रॉपर सिस्टम था, जूरी ट्रू। थी, और साथ एक वोटिंग का भी था। तो दैट वाज द टाइम आई रियल, अच्छा, दैट वाज द टाइम मुझे पता था कि ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर्स होते हो, मोटिवेटर होते हो, लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन वो जिस तरह से स्टूडेंट्स ने, उनकी फैमिलीज ने, वो पता नहीं, एक मुझे लगा था पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच हो रहा है, वो हर कोई, आप जीती, आप जीती, हमने आपको वोट किया, वो मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आते थे। दैट वाज अ वेरी एक बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। इट वाज नॉट कि हमने जीतना है या हारना है, लेकिन ट्रू। मुझसे ज्यादा वो स्टूडेंट्स बड़े मोटिवेटेड थे, और दे वर लाइक कि मैम, आपको जीतना है। तो मैंने कहा, भाई, इतने लोग आ रहे होते हैं, तो किस्मत में होगा तो जीत जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जीतेंगे। लेकिन वो मैंने एक पैशन देखा, वो एक अच्छी एक्टिविटी थी, हमने बड़ा उसको एंजॉय किया, और फिर वो जीत भी गए। और उसके बाद आई हैड अ वेरी एक और इमेंस, उसके बाद मुझे ट्रीट्स बहुत देनी पड़ी, जो वाओ पी के पैसे देने चाहिए सारे winners को। लेकिन आई थिंक वेरी गुड इनिशिएटिव, आई मस्ट अप्रिशिएट द टीम। और स्पेशली जो वुमेन के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि यू पीपल आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड कीप इट अप। और प्लीज आप लोग, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, ये लोग, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसके बाद हाँ, मेरी बहुत अच्छी इनसे दोस्ती बनी। अच्छा, अब हमने फिर नॉमिनेट किया, अगर हम फिर जीत गए तो अब ये देखिए, एक फिर क्वेश्चन मारना चाहिए। लेकिन ठीक है कि ऐसा नहीं है, दे वर फेयर इनफ। जो जूरी थी, वो बड़ी अच्छी थी। इवन आई डिडंट नो द जूरी, की जूरी कौन है, हमें उसी दिन ट्रू। डिस्क्लोज। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक एक्सेप्टेंस लेवल जरूर होना चाहिए हम सबको, कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबको मिलके। और जो जीत रहे हैं, ये देखिए, इट्स नथिंग अबाउट के विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट अ टीम वर्क, हाउ यू अप्रिशिएट एंड encourage द women हु आर वर्किंग। और प्रॉब्लम ही ये है कि मैं आपको अगर एक रिपोर्ट की यहाँ पे रिसर्च फाइंडिंग्स कोट करूँ, कि मेल्स जो होते हैं वो कनेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो आइसोलेशन में काम करना पसंद करती हैं। हमें इस ट्रू। आइसोलेशन से कनेक्टर्स की तरफ जाना है। ट्रू। देन
we can move forward. So that Very it true. was an amazing experience, Kiran. It was great. थैंक यू सो मच। the लास्ट क्वेश्चन, देन विल मूव ऑन टू द पब्लिक क्वेश्चंस। ये आपके जो कोविड है, इसने कैसे पूरा मोड चेंज किया एजुकेशन का? व्हाट डू यू थिंक कि कोविड के आने के बाद, पोस्ट एंड प्री कोविड में क्या चेंजेस आई हैं, एंड व्हाट आर यू सीइंग कि आगे क्या चेंजेस आएंगी हमारी एजुकेशन में, फीमेल मेल दोनों में? बट हाउ डू यू थिंक कि फीमेल्स जो है इसमें और इनको अप्रोच, बिकॉज घर के एनवायरनमेंट में भी लोगों ने पढ़ना शुरू किया बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एंड थिंग, इससे क्या आप फीमेल्स में इंक्रीज हुआ है उनके रेट में एजुकेशन में, इवन इन रूरल एरियाज और एनी अदर एरिया? हैज इट इंक्रीज? कोई चेंज आया है या आएगा इन फ्यूचर? अच्छा, अगर मैं कोविड की बात करूँ तो ऑब्वियसली एक पेंडेमिक है, अल्लाह ताला सबको इससे एक तो महफूज रखे। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे नो डाउट कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने ज़्यादा सीख लिया, हमने एक सिस्टम्स डेवलप कर लिया, हमारे पास एक बैकअप प्लान्स आ गए। बट ओवर द जब हमने इसको एक्सपीरियंस करा है, मैंने इसको एज अ टीचर भी एक्सपीरियंस करा और मैंने इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव भी के तौर पे भी एक्सपीरियंस करा है। सो व्हाट आई थिंक इज कि मुझे लगता है कि जो अगेन वो जो फिजिकल इंटरेक्शन है क्लास के अंदर, इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय दिस एजुकेशन सिस्टम। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है इट इज इफेक्टेड, कि मुझे लगता है कि खराब हुआ है। द ओके। क्वालिटी, आई हैव ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन द क्वालिटी। और मैं स्पेशली अगर फीमेल फैकल्टी की बात करूँ तो मुझे इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस था कि दे वर वर्किंग सो हार्ड, और वो घर से अपने बच्चों को भी मैनेज करते हुए, सबको करते हुए, तो कभी वो जूम पे इंटरेक्शन या क्लासेस ले रही हैं और कभी वो कोई बच्चों के पीछे से आवाज आ गई या कुछ, तो एक अजीब तरह का स्टूडेंट के कमेंट्स। और मैंने अभी मीडिया के ऊपर भी देखा कि जी टीचर्स जो है वो क्या, मतलब अब आप देखेंगे, आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो लोग उठ के आपको पढ़ा रहे हैं विद ऑल दोज हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी ट्रू। ठीक है, अब वो क्या करें, वो बच्चों को घर से बाहर फेंक दें, क्या करें? हम्म। दिस वाज समथिंग सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि किस तरीके से हमारी यूथ, किस तरीके से ये हमारी जो सोसाइटी है वो सोचती है कि वो एक बंदा जो अपने एक एफर्ट कर रहा है, वो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है और सबके साथ उस पेंडेमिक को वो भी फेस कर रहे हैं ना। खाली ट्रू। द स्टूडेंट्स आर नॉट, इवन मुझे तो इस चीज के ऊपर भी मेरा क्वेश्चन मार्क होता था अक्सर कि ये लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, कि ऐसा लगा ही के है। और कि वो बंदा पूरा घंटे की क्लास ले रहा है, उसको वहां अलर्ट रहना है, उसको वेरी वहां ट्रू। पे बोलना है, उसको लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने हैं, उसको अपलोड भी करना है, उसको क्विज भी मार्क करना है। उनके तो काम डबल हो गए थे डबल हो गए थे, बिल्कुल। पूरे पेंडेमिक के अंदर। लेकिन ट्रू। अनफॉर्चुनेटली जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से एक मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, नॉट पर्टिकुलरली, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैंने जो एक ओवरऑल देखा कि जिस तरीके से इसको यूथ ने लिया है, जिस तरीके से वो पेरेंट्स ने हमें बात हुई है एक एजुकेशन सिस्टम पे, तो मुझे अफसोस हुआ इस चीज को कि यार वो जो सारी एफर्ट्स इन लोगों ने की हैं, मतलब वो क्यों की हैं? अगर हमने यही बात सुनी थी, हमने किसी के सेमेस्टर्स लेट नहीं होने दिए, हम लोगों ने वो हमें पता था कि स्टूडेंट्स का हर्ज होगा, सो वी मेड इट अ पॉइंट कि हम उस सारी चीजों को, क्वालिटी को मीट करें। बट ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं, हर कोई, मैं ये नहीं कहती। और ऑनलाइन एग्जाम्स, आई थिंक दिस detrimental फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम। वेरी ट्रू। और मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ। और मुझे नहीं समझ आता कि व्हाट इज द रीजन कि क्यों। अब जैसे हमने यूनिवर्सिटीज को लिए, हमने 2 वीक की टीचिंग ऑफर कर दी है, आए आप करें, इंटरेक्शन करें। ट्रस्ट मी किरण, जब हम जूम इंटरेक्शन अपनी क्लासेस करते थे, हम लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे होते थे, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आता था हमें। टीचर्स पूछ हम्म। पूछ के थक जाते थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, पूछें। दे वर लीस्ट बॉदर्ड। और वो जब मैं वहां पे एक अजीब किस्म के आर्ग्यूमेंट सुनती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और मैं सिर्फ आखिरी बात इसमें ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को शायद इस चीज की सेंसिटिविटी का अभी अंदाजा नहीं है यूथ को, लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है कि स्पेशली जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे वेरी ट्रू। मेडिसिन, कुछ, कल इन्हीं बच्चों ने कल कोई ब्रिज बनाना है, इन्हीं बच्चों ने कल कोई दवाई बनानी है, इन्हीं बच्चों ने कल कोई ऑपरेशन करना है। और वहां पे कहीं नहीं वेरी लिखा हुआ था कि ये वो वाले बच्चे थे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिए थे और उनको कुछ नहीं आता था, तो वो अब वेरी मेरी ट्रू। और आपकी फैमिलीज ने ही सफर करना है। तो ये ऐसा इसको ही है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। परफेक्ट। लेट्स गो टू द कमेंट्स नाउ। नौरीन गफ्फार कहती हैं ग्रेट गोइंग। देन वी हैव गुलशन, शी सेड थम्स अप। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। नौरीन गफारी कहती हैं कि शी एग्रीज ऑन टेकिंग हर टेक ऑन ट्रेनिंग, शी वांट्स टीचर्स टू बी ट्रेन इन एवरीथिंग। Okay, another user says good discussion. Noreen Ghaffar says nice explanation, Dr. Madiha.
Gulshan says need to train all moms and dads for early child education, beat of COVID new norms. What do you say about it? Do we need to teach our or train our parents as well for this thing? आई थिंक डेफिनेटली आई वुड Okay, टोटली एग्री विद गुलशन बिकॉज देखिए आप खाली वही हमने बात की कि एक स्टेक होल्डर आपका टीचर है, एक स्टेक होल्डर एक आपका स्टूडेंट है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आपका पेरेंट्स भी है। अब very true, मैंने पेरेंट्स को इस कोविड के सिनेरियो में बहुत ज्यादा सफर करते हुए देखा है कि अब अगर किसी के घर में चार उसके बच्चे हैं और चार बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उसको चार लैपटॉप्स चाहिए। very अब यार true. 4 कंप्यूटर्स चाहिए, अब वो बेचारे क्या करेंगे? एंड देखें हर हमारे जो खवातीन हैं स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, उनकी वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ उनकी मे बी दे आर नॉट वो लिटरेट नहीं है, टेक्नोलॉजी लिटरेट नहीं है। तो आप कैसे इस चीज़ को पेंडेमिक के दौरान हैंडल करेंगे? तो मुझे Very लगता true. है आई टोटली एग्री कि जब हमारे अगर स्कूल सिस्टम्स दोबारा से खुलते हैं इंशाल्लाह और ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती हैं, तो स्कूल्स को ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि वो कोई एक आध पेरेंट्स के लिए कोई टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट ट्रेनिंग सेशंस के हम अगर अपने कोई पेंडेमिक के अंदर कोई बैकअप प्लान्स रखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इसको करना चाहिए। और Okay, okay, your point has been actually proved by Gulshan as well. She says digitalization is new in our country and we lack resources, and that's very true. Parents do not know about it, most of them. और बहुत से पेरेंट्स के पास इतने ऑब्वियसली लैपटॉप्स है भी नहीं, घर में एक या दो लैपटॉप्स होते हैं मैक्सिमम, बोथ पेरेंट्स है वर्किंग, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारे बच्चों को इकट्ठे बिठाना. So, Noreen says all the best girls. Thank you so much, Noreen. Gulshan says emotional intelligence is very important. Very true. Okay. Noreen, just a suggestion. Teach people in education, try and train the kids' mind towards business and entrepreneurship. I think that is really, really very important. Okay. आई टोटली एग्री टू नोरीन। और नोरीन को मैं ये भी हमेशा बात करूंगी कि मुझे 13 साल नौकरी करने के बाद समझ आया कि ओहो मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए था। and finally I started my journey and now मैं अब जिन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और जो कर रही हूँ तो मैं उनको अब डे वन पे ये चीज समझा रही हूँ कि बेटा Very आपको important. 13 साल जाया करने की जरूरत नहीं है, नौकरी नौकरी होती है तो आपने ये बनना है। Very true. Gulshan says, agree, it's a sensitive questions. Okay. Teachers are the middle layer of sandwich. Very true. You actually teachers build up a kid and everything. Fawzia Ayub says we have introduced a 6 weeks course on emotional intelligence in our very nice. Okay. Then we have a question. Oh, sorry, there's a question. Ma'am, do you think standardized testing is the most important effective way to judge learning? I totally agree to Saad. Or Saad, the problem is not standardization. The problem is the implementation of that standardized curriculum. Like अगर Mm-hmm. आप देखें तो मुझे ये मेरी एक फीलिंग जो ये है कि वही अगेन मैंने यही बात की कि जैसे एक फ्रेमवर्क जरूर अवेलेबल है। हमें अभी पाकिस्तान का जो एचईसी ने पीक्यूआर का क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा एक डाटा बेस पूरा उन्होंने मैनुअल भी किया और बनाया भी है। हमारे पास फ्रेमवर्क है और हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज भी किया, लेकिन अगेन हमारी जो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी बहुत सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनके अंदर वो रेलिवेंट लोग नहीं होते, या मे बी दे आर नॉट बॉदर्ड इनफ कि वो स्टैंडर्डाइजेशन करें। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इंस्टीट्यूशंस के अंदर variations होनी चाहिए और ये वेरिएशन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज को स्टैंडर्डाइज कर देंगे बिल्कुल ही यानी कि इतना मायोपिक विजन दे देंगे तो फिर आपका एक हेल्दी कंपटीशन नहीं आएगा। Very फिर true. मैं और आप क्यों किसी चीज को करेंगे जब दो और दो चार मैंने भी पढ़ाना है और किसी और ने भी पढ़ाना है। तो बट आई थिंक इसके फ्रेमवर्क इज अवेलेबल, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए जिसमें रहते हुए हर इदारे को, हर टीचर को, हर एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी से उसको जो है उसको अपग्रेड करना चाहिए। दिस क्रिएट्स अ वेरी हेल्दी मैं यूएस से गई हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में, और वहां मैंने उनकी टीम के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। तो वहां मैंने ये देखा कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है कि स्टैंडर्डाइजेशन का एक फ्रेमवर्क दे दिया और उन्होंने तमाम फार्मेसी स्कूल्स को उसके अंदर को ये अलाउ कर दिए, फ्लेक्सिबिलिटी कर दिए, दे दी है कि उन्होंने खुद करना है। देन दे उनकी वो वहां पे एक पूरी विजिट होता है और उसके बाद वहां पे वो लोग जज करते हैं और उनकी रैंकिंग होती है।
तो दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड मूविंग फॉरवर्ड. तो आई टोटली एग्री कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, बट अगेन फ्रेमवर्क अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि एक हेल्दी कंपटीशन रहे इदारों के दरमियान. वेरी ट्रू. देयर इज एन एग्जांपल जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, कि आपने भी देखी, क्योंकि वो पिक्चर अक्सर दिखाते हैं कि एक फिश और एक आई थिंक मोंकी का एक मुकाबला करवाते हैं, एंड दे वांट कि वो दोनों ट्री पे चढ़ेंगे, देन दे विल विन द कंपटीशन. सो एग्जैक्टली, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज फर्क है, हर बंदे की कैपेबिलिटीज फर्क है, सो वी कैन नॉट मेक इट अ टोटल स्टैंडर्ड, बट यस वी कैन गिव देम अ फ्रेमवर्क. Thank you so much, Madhya, for all your time and your effort. Thank you so much. Thank you, everybody, for the time and effort. Thank you, Madhya. Allah थैंक यू Hafiz. सो मच किरण. ओके, Lovely अल्लाह हाफिज. talking to you as always. Allah सेम Hafiz. हियर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.